birth in 1978, birth of IP. Then 1981 is the introduction to ITCP slash IP, and then its expansion. So let's concentrate on the birth of internet first. So, sir, birth of internet started when a network was developed on the request of Advanced Research and Project Agency, called short form as ARPA. That's why it's called ARPANET. Sir, its design discussion was held, and eventually a company was selected named Bolt Burnett Newman to create the ARPANET, which was future going to call the ARPANET. Then they took a research. They created using a research network for using the primary facilitate the defense operation. They created the ARPANET to primary facilitate the defense operation so that it works smoothly. Then, sir, they first created a node. First node was created in which IPCL was the first router, as you can say, and Sigma 7 was the first host of this system. Then, sir, in the December end of this year, they introduced the four node system of internet, where they introduced uh, UCLA as the first node, SRI as the second node, and UCSB as the third node, and UTAH was the fourth node, and Sigma was the host of this node. So to run this node, you will say that TCP was not invented at that time or not published. They were using the NCP, which was the Internet Control Protocol, to run this node or the server type system. Then, sir, birth of TCP started, in which the same company, VBNA technician Ray Tomlinson, sent the first email in 1972, and then in 1974, the first specification of TCP was published, and till in 1970s, the TCP keep goes growing and become a very huge. Then the IP was birthed. The IP was basically created because now people wanted a different thing to modulate their system better or their protocol or internet services better. So they split the TCP and IP into two different things. So IP is previously a part of TCP, but they splitted them and created TCP and IP as a separate thing so that moderate the whole different protocol so that they can create the internet protocol in 1978. This was done in 1978. At that point, there was still using NCP and ARPANET. The ARPANET was still using NCP, not TCP at that time also. Then, sir, introduction of TCP slash IP started. And at the early 80s, TCP slash IP became the predominant network protocol on what they were still flanging internet was still called ARPANET. At that time, the internet was not published for the everyone. It's still only in the ARPANET. And in early 80s, there was a several network became created for 1981. For example, there was the BitNet that was actually a primary network of IBM mainframe system of computer science network. There were several other network also created. They eventually started using TCP slash IP for defactoring the network protocol on the internet. It was eventually wasn't until the expansion of TCP and IP started. This is the time where the internet became available for everyone because creation of the NSFC net, which have been in 1986, so that for the faster backbone, it can deliver 56 kilowatt kb of data. Eventually, processing of all network was combined together and created the internet, which we still use. If TCP slash IP wasn't using in the previous generation, where ARPANET and different BitNet, as we seen in the previous slide, was not created and using TCP, we will be using some other protocols like Novel IPX SF suite in today our desktop. Sir, it's still here only. Right, right. So could you please briefly explain what is this, what you have
you summarize it. What exactly, how this TCP, IP, and all the things get evolved. Sir, basically in the previous generation, we only have, sir, basically in the previous generation, the ARPANET was using NCP to transfer their packages differently. Then there was the different nets was also created, but ARPANET was still using NCP until and unless TCP was combined together with IP. But in sir, previous 1972, 1978, sorry, IP was created because they were getting some issues while using TCP. Means they cannot controlling their emails or different things properly, so they want the modularity or work, so that their system or their email and different networks can work smoothly. So IBM and all that were created at that time, so they used the created the IP, then sir they merge all them together because sir then ARPANET also started using TCP slash IP, which was getting bigger at that time. Also sir different network also using, so they combined them so that they don't have to use them differently or alternatively. Then sir their expansion become huge because since all the networks that were available at that time privately to the companies, they were using TCP slash IP. That's why when the internet was created, they that was created by combining all the network that were present at that time. They created basically internet by combining ARPANET, BitNet, and different networks to create the internet, but they were using TCP slash IP. That's why in our modern computers also we have TCP slash IP, not any other protocols like I mentioned the example. Okay, right, correct. So it's a very good, and descriptive. And I request you to, share this slide with all the students so that they can, go through it. And the brief introduction is in your course. What is this IP and TCP and TCP IP? Anyone else who want to speak on this? किसी और ने किया है? Anyone else who want to give introduction on TCP IP or TCP IP? Okay, right. So right. So in the last class, let me share my screen with you all. Okay, and let's open a syllabus. Yes. Okay. So in the last class we discussed this domain name and internet connections. Now there is one topic that is what we call IP addresses. Now what is this IP address basically? Can anybody tell you? Can anybody tell what is the difference? What is IP address? Yes, sir. Who who is going to tell? Saurabh Sharma. Yes, Saurabh. What is IP address? Sir, IP address is provided by the internet service provider. It uniquely identifies us on the internet. Very good. It is an uniquely identified us on our internet means us means the machine. Yes, sir. Whatsoever the machine is, whether it is a palm top, laptop, your mobile or your desktop, your laptop, anything, whatsoever device get connected into the, connected with the web, it has one unique address that is what we call IP address, Internet Protocol address. And this is very good, very good. Anything else, Saurabh? And it is provided by the internet service provider. Yeah, it is provided when it is provided. See, there are two kinds of address. One is physical address, and can anybody tell the difference between physical and MAC address or IP address? There are three addresses. Yes. Okay. So write down question. Write down question. This question is very important. What is IP address? How it is different from physical address of a system? How it is different from a physical address of a system? So let's see. I'll show IP address. आपको दिखाते हैं क्या होता है. देखिए
IP address is a unique address that identify a device on an internet or a local network. This is what we call, IP address, and it is provided by the obviously the internet provider. And there is one more term, that is what we call physical address. Physical address in networking. Now, what is this physical address? Uh, a networking physical address refers to the computer MAC address, which is a unique identifier associated with a network adapter. Basically, whenever you purchase a your system and you first time initially connect it with the internet, तो उसका एक अपना एक एड्रेस होता है. हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है. उस यूनिक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं. तो ये याद रखिएगा. और इंटरनेट एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है? वो तो इंटरनेट जब आपको कोई प्रोवाइड करता है, तो सर्विस प्रोवाइडर, तो वो आपको उसका एक आईपी एड्रेस आपको एक अलॉट करता है. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा कुछ भी करके चला जाए. तो वो ट्रैक इसीलिए जितने भी क्राइम्स होते हैं, इसको कैसे ट्रैक करते हैं? ये ट्रैक करते हैं बाय फॉलोइंग द आईपी एड्रेसेस, कि आईपी एड्रेस किसके पास था उस टाइम. तो ये आईपी एड्रेस, लेकिन एक आईपी एड्रेस जो है आज की डेट में डायनेमिक आईपी एड्रेसेस होते हैं. डायनेमिक आईपी एड्रेसिंग का मतलब क्या है? एक आईपी एड्रेस थोड़ी देर पहले वैभव के पास था, वो कुछ देर के बाद राशि के पास चला गया, कुछ देर के बाद अर्पित के पास चला गया. मतलब वो रोटेट होता रहता है नेटवर्क के अंदर. लेकिन हर आईपी एड्रेस के साथ टाइमिंग्स होते हैं कि ये कितनी देर राशि के पास रहा. मतलब अगर कोई गड़बड़ हुई और उस टाइम वो आईपी एड्रेस राशि के पास था, तो उसको कॉट किया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है. तो इसको कहते हैं डायनेमिक राउटिंग और डायनेमिक आईपी प्रोटोकॉल. ये आप आने वाली क्लासेस में, मतलब हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मतलब आगे पढ़ोगे. कंप्यूटर नेटवर्क एक सब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे. फिलहाल आपको ये बताना चाहिए कि आईपी एड्रेस, अच्छा आईपी एड्रेस भी दो तरीके का होता है. देखिए, आईपी एड्रेस के बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाओ, तो आईपी एड्रेस आपको बताना चाहिए 32 बिट और IPv6 और आईपी, आपने सुना होगा IPv4 और IPv6. सो लेट मी शो यू पीपल IPv4 और IPv6 में क्या फ़र्क होता है. देखिए, ये जो है ये IPv4 एड्रेस है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे. IPv4 एड्रेस डॉटेड डेसिमल में ऐसे दिखाया जाता था 172.16.254.1. आपने देखा होगा अपने घर में आपके आईपी एड्रेस जो आता था, इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ये एड्रेस डालता था पहले. लेकिन आज की डेट में IPv4 यूज़ नहीं हो रहा. IPv4 के अंदर ना एक कमी थी. क्या कमी थी? कमी ये थी कि ये लिमिटेड एड्रेसेस होते हैं. IPv4 के अंदर लिमिटेड थे, लिमिटेड भी मिलियंस में थे, लेकिन फिर भी लिमिटेड थे. लेकिन IPv, और तुम्हें पता होगा IoT का नाम सुना है आपने, इंटरनेट ऑफ थिंग. तो इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर आपको बहुत सारे आईपी एड्रेसेस चाहिए. एक्चुअली इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या? ध्यान से सुनिएगा. इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है वी वांट एवरीथिंग शुड बी लाइव. हर चीज़ लाइव चाहते हैं हम. जैसे चेयर पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो चेयर पे लाइव हो जाए, वो मुझे बोले कि भाई आपका पोस्चर सही नहीं है, या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप इससे ज़्यादा देर मेरे ऊपर मत बैठो, मैं टूट जाऊँगी. ऐसी दीवार आपको बता रही है कि हाँ यार मेरा पेंट ख़राब हो रहा है, आप इस पेंट को ठीक करा दो. तो पंखा आपको बोल रहा है कि क्या मैं स्लो हो जाऊँ, अगर ठंड है, बाहर का टेम्परेचर कम है. तो मतलब एवरीथिंग स्पीकिंग इन ए सेंस. स्पीकिंग डजंट मीन कि वो मैनुअली स्पीक कर रही है. स्पीकिंग मीन्स वो आपको सिग्नल दे रही है कि हाँ, आप अलर्ट दे रही है आपको क्या करना है नेक्स्ट, वो आपसे पूछ रही है. तो ऐसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें हर एक के अंदर एक एक चिप चाहिए. हमने क्या किया, ये लाइव कैसे देंगे सबको? अगर सबके अंदर हम एक चिप इंसर्ट कर दें, जैसे चेयर है, एक चिप इंसर्ट कर दें हर जगह, तो तुम कहोगे सर इतनी सारी चिप्स कैसे आएंगी, फिर हर चिप के लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए, वो इतने सारे आईपी एड्रेसेस कैसे आएंगे? तो ये एक प्रॉब्लम थी. 2010 से पहले ये प्रॉब्लम थी. जब तक हमारे पास क्या था, तब तक हमारे पास ये था IPv4. ये IPv4 के अंदर लिमिटेड आईपी एड्रेसेस थे. तो इंटरनेट ऑफ थिंग का बातचीत तो चल रही थी, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इंटरनेट ऑफ थिंग कैसे पॉसिबल होगा. क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि उस टाइम आईपी एड्रेसेस बड़े लिमिटेड थे. बड़े लिमिटेड मतलब मिलियंस में थे, लेकिन तब भी लिमिटेड थे, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी. और तुम्हें पता होना चाहिए, हर बंदे के पास एक एक गैजेट नहीं था, 10-10 गैजेट थे अब. क्योंकि उसके पास अपनी वॉच भी है, उसके बाद अपना मोबाइल भी है, उसके बाद अपना डेस्कटॉप भी है, उसके बाद अपना लैपटॉप भी है.
तो नंबर ऑफ डिवाइसेस भी बढ़ रही थी, और हमें जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर चाहिए तो हमें चाहिए था कि ये आईपी एड्रेसेस अनलिमिटेड हो। तो ये अनलिमिटेड जो चीज़ थी ये फिजिबल हुई विद द इन्वेंशन ऑफ IPv6। ये देखो, IPv6 64 बिट एड्रेस था, वो 32 बिट एड्रेस था। ये IPv4 जो था ये 32 बिट एड्रेस है। देखो 8 8 16 32 सॉरी 8 16 32 832, मतलब 32 8 4 था 34 बिट इसमें वो था। लेकिन इसके अंदर 64 बिट था इसके अंदर। ये IPv6 का आपको एड्रेस दिखाया हुआ है, ये IPv6 का दिखाया हुआ है, इसके अंदर 64 बिट्स हैं। तो 64 बिट होने की वजह से इसके अंदर अनलिमिटेड IP एड्रेसेस हो गए। अनलिमिटेड मतलब आप जितनी मर्जी यूज़ कर लो तब भी ये ख़त्म नहीं होंगे। तो ये फ़ायदा, ये एक तो IoT के अंदर फिर ये फैसिलिटी तो आ गई हमारे पास कि हम लाइव तो दे सकते हैं सबको। क्योंकि पहले तो हमें यही नहीं पता था ना लाइव कैसे दें, क्योंकि हमारे पास IP एड्रेसेस नहीं थे। लेकिन जहाँ तक ना 2010 के बाद जब ये IPv6 डेवलप हो गया तो फिर ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो गई कि हमें IP एड्रेसेस की जो लिमिटेशन थी कि कम थे वो ख़त्म हो गई। ओके, अब भाई ये तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम क्या थी, तुम कहोगे सर फिर भी IoT आज की डेट में फिजिबल क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है क्योंकि जो सेंसर टेक्नोलॉजी है, जो सेंसर हमने लगाने हैं, IP एड्रेस तो आपके पास आ गए, लेकिन जो सेंसर आज भी हमें लगाने हैं वो बड़े एक्सपेंसिव हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ऐसे नोबल मेटल यूज़ होते हैं, तो वो बड़े महंगे होते हैं अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए तो। वैसे तो तुम कहोगे सर हम घटिया वाले बना लेते हैं, अरे घटिया बनाओगे तो फिर उसकी उसकी लाइफ शॉर्ट होती है, थोड़े टाइम के लिए वो चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम अभी भी आज की डेट में भी सेंसर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से सेंसर टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाए। अगर सेंसर टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाती है, जो कि होगी बाय 2025, आप देखना सेंसर्स बड़े इजीली मिलेंगे। जब सेंसर टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी तो ये IoT जो है कम्प्लीटली फिजिबल हो जाएगा। आपके घरों में हर जगह IoT होगा, मतलब आपका फ्रिज, आपका आपका पंखा, आपका घर की दीवारें, आपका मतलब एनी हाउस होल्ड थिंग दैट यू आर सीइंग, यू कैन सी इट विद IoT enabled। आज की डेट में भी आपने देखा होगा लोगों के घरों में लाइट्स लोग उससे चलाते हैं। मतलब बहुत कम IoT फिजिबिलिटी है, क्योंकि हर जगह अभी हमने हमारे सेंसर जो है वो इतने एक्यूरेटली काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। खैर एनी हाउ, आई थिंक मैंने अपना मैसेज आपको पहुँचा दिया कि IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है। तो हमें ये क्वेश्चन भी करना है एक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6? जस्ट नोट इट डाउन। डिफरेंस बिटवीन IPv4 IPv6। देखिए आपको बड़े सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे, आप इसको कहीं से भी लिख सकते हैं। ये आप इसको अच्छे से एक बार लर्न करके, मतलब इसको अच्छे से लिखिएगा। देखिए IPv4 के अंदर 32 बिट एड्रेस स्पेस होता है, इसके अंदर 128 बिट स्पेस होता है। फिर बाकी कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लर्न करिएगा। ठीक है, इसका कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इसका हेडर वेरिएबल होता है, इसका फिक्स्ड होता है, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आप करेंगे। खैर एनी हाउ, किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ लो। IPv4 क्या था, IPv6 क्या था? सर डायनेमिक एड्रेसिंग क्या है? रियांशा आपकी वॉइस बड़ी लैग करी है, दोबारा पूछो बेटा। सर अब ऑडिबल है? ये सब ऑडिबल है, पूछो बेटा। सर पूछ रहे थे उसका मीनिंग क्या है? किसका किसका मीनिंग? सर डायनेमिक एड्रेसिंग। डायनेमिक एड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि देखो एक्चुअली क्या था, पहले ना IP एड्रेसेस जो थे ना हम ना स्टैटिक थे। जैसे रियांशा को एक दे दिया, सौरभ को एक दे दिया, सीतक को एक दे दिया, वरुण को एक दे दिया, वत्सल को एक दे दिया, अर्पित को एक दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी रियांशा इसके अंदर कि तू अपना IP एड्रेस लेके बैठ गई, तू यूज़ तो करती नहीं है कुछ ना, कंप्यूटर यूज़ तो, इंटरनेट यूज़ भी नहीं करती। तो वो एक तरीके का हमारा IP एड्रेस जो है आइडल पड़ा रहा, आइडल यूज़ नहीं हो रहा। तो वो ये करता, आजकल डायनेमिक IP एड्रेसिंग में क्या होता है, जो IP एड्रेसेस यूज़ नहीं हो रहे वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है दूसरे बंदे को कि ले भैया तू यूज़ कर ले। तो इस तरीके से हर बंदे का IP एड्रेस जो है आफ्टर सम टाइम चेंज होता रहता है। जैसे तू यहाँ से प्लेस चेंज कर रही है, तुम
सपोज पीथमपुरा से रानीबाग आ गए, रानीबाग से पंजाबी बाग चले गए, पंजाबी बाग से तुम करोल बाग चले गए, तो तुम्हारे आईपी एड्रेस जो है कुछ कुछ टाइम के बाद आपके प्लेस के हिसाब से, क्योंकि टावर जो होगा वहाँ पे जो नियरेस्ट टावर होगा वो वहाँ से आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन हाँ, तेरा फिजिकल एड्रेस कॉमन रहेगा डिवाइस का, तो तेरे को अगर तुम कोई गड़बड़ करते हो तो वो तुम्हें इजीली टैप किया जा सकता है। समझ में आया रियांशा? Okay, sir. ओके राइट, एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. एनी अदर क्वेश्चन? सौरभ तेरे को समझ में आया? सौरभ शर्मा, तेरे को ये समझ में आया बेटा कि आईओटी के अंदर IPv4 और IPv6 का क्या रोल है? सर बस ये पता है कि IPv6 128 बिट्स होता है, रोल समझ नहीं आया। रोल ये समझ, देख बेटा, IPv4 के अंदर तेरे पास लिमिटेड आईपी एड्रेसेस थे, तेरे पास लिमिटेड आईपी एड्रेसेस थे IPv4 में, और IPv6 में अनलिमिटेड है। और जब तेरे को IoT बनाना है, IoT फिजिबल करना है, तो तेरे को अनलिमिटेड आईपी एड्रेसेस चाहिए, जो कि तेरे को IPv6 में मिलेंगे। अभी समझ में आया? यस सर। राइट राइट बेटा। और एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? Yes sir, जब sir whenever I try to like I run Kali Linux also in my virtual machine, and whenever I try to hack Wi-Fi devices, they are my own Wi-Fi devices, but when I open the network interface, two types of IP addresses are visible, IPv4 and IPv6. Why is that? हाँ हाँ, सही कह रहा है। मतलब यू व्हाट इज योर क्वेश्चन एग्जैक्टली? सर जब भी मैं मतलब कि हैकिंग ट्राई करता हूँ वाईफाई की, तो दो टाइप की उसमें एड्रेसेस आते हैं कि दिस डिवाइस इज IPv4 IPv6। कुछ अभी भी जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है ना, मतलब नेटवर्क प्रोवाइडर है ना, वो दोनों दोनों आईपी एड्रेसेस पे चल रहे हैं, IPv4 पे भी, V6 पे भी। ठीक है, तो हो सकता है जो तेरा नेटवर्क प्रोवाइडर हो वो दोनों पे चल रहा हो, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। वैसे आज की डेट में IPv6 यूज हो रहा है वाइडली। ठीक है, यस। ओके। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो आज के क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं मैंने? राशि जरा एक बार क्वेश्चन रिपीट करना बच्चे। राशि मुत्रेजा। सौरभ तू रिपीट कर दी बेटा, कौन कौन से क्वेश्चन दिए मैंने? Yes sir, what is IP address, how it is different from physical